Good evening, students. Welcome to the next lecture of the chapter 2 of physics, electrostatic potential and capacitance. So in the last class, let us revise. The last topic we have understood was the electrostatic potential, the definition of electrostatic potential. So what is an electrostatic potential? If I define it, the electrostatic potential at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration. So we had defined that electrostatic potential at any point is work done in bringing that point a unit positive charge from infinity to B divided by Q. So we'll move forward. As you can see, today we'll take the topic electrostatic potential due to a point charge. What is the electrostatic potential due to a point charge? So we have to assume something, or let us first say that there's a origin and a positive source charge has been kept in the origin. So I will write it positive plus Q has been origin, and there's a point P. There's a point P, and it is at a distance of R. So there's a point P. Now we have to calculate electrostatic potential due to a point charge Q at point P. So this is what we need to calculate. So we have to calculate potential at point P due to a single point charge plus Q at the origin. Now, and here OP is equal to R, or we can write the position vector OP, position vector is R. So अभी इसको भूल जाइए. Okay. Now, since we have seen the definition of electrostatic potential at point P will be the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point. So suppose एक infinity पे हमने, ये infinity है, यहाँ से चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है. Now this bringing of work done in bringing is independent of the path followed. तो ये यूं होके भी आ सकता है, ये ऐसा करके भी आ सकता है, या ये सीधे एक रेडियल डायरेक्शन में आ सकता है. तो हम क्या करेंगे, हम ये चूज़ करेंगे, भाई कन्वीनियंस चाहिए हमको अपने कैलकुलेशन में, तो कन्वीनियंट रेडियल डायरेक्शन को हम चूज़ करते हैं. सो लेट अस चूज़ अ रेडियल डायरेक्शन जहाँ से हम इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P पे ला रहे हैं. तो इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं. अब कहीं पे इस पाथ में वी विल चूज अ पॉइंट A. कहीं पे इन दिस पाथ there's a point A which is at a distance of x from the origin, which is at a distance of x from the origin. Now this point A, in this point A we have, there's a unit positive charge. So what will be the direction of force? The direction of force here, or electric field, will be in this direction.
Okay. Now we choose, so let us first calculate the force here. So here the force here at this point will be, since we know force between two charges is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square. So distance, so यहाँ पे फोर्स कितना हो गया इसका, मैं 1 upon 4 pi epsilon naught को K लिखता हूँ, Q1 Q2, Q1 है प्लस Q2 है 1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया x स्क्वायर. तो इसको आप याद रखिए. सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स exerted by this charge on this charge is this. Okay, तो ये कितना हो गया k q अपॉन x स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया. अब I'll say, and this force will be variable because the distance is varying, the force also will be varying. तो हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा इसमें एक टुकड़ा लेते हैं, एक पॉइंट B लेते हैं और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम dx बोलते हैं. अब ये हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा वर्क डन है. अब उस छोटे से वर्क डन में हम बहुत ही इन्फाइनाइट डिस्टेंस में है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है. तो हमको यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज को यहाँ A से B में लाने का हमको वर्क डन मिल जाएगा. वो क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे हम dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, इसका मतलब क्या है, फोर्स और यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है dx वेक्टर. तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वर्क डन इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो फोर्स कितना है q अपॉन x स्क्वायर और ये हो गया dx और cos थीटा. cos थीटा यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ dx इज फ्रॉम A to B. तो ये cos हो गया 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होता है -1. तो ये हो गया k q अपॉन x स्क्वायर dx minus. So the work done, a small work done is minus kq upon x square dx. अब मुझे पूरा वर्क डन निकालना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. तो फ्रॉम इन्फिनिटी when the distance is infinity and when the distance is r. तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वर्क डन उससे मिल जाएगा मुझे. सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज, उसको मैं लिख लेता हूँ W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R माइनस KQ x square dx. So this is what the formula. अब ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, k is constant, okay, q is also constant, but x is changing at every point. तो यहाँ पे हम बाहर निकाल देंगे k q इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r 1 upon x square dx. नाउ इसका आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर मालूम है, अगर इफ वी हैव टू इंटीग्रेट x to the power n dx, तो ये होता है n प्लस n plus 1
एक्स एन प्लस वन, ये उसका फॉर्मूला होता है। सॉरी, ये डिवाइड होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूँ कि Q वन अपॉन एक्स माइनस साइन इसके अंदर माइनस वन अपॉन एक्स ये उसका फॉर्मूला है। इसको आगे और करते हैं, अब मुझे रब करना पड़ेगा। आई विल रब इट फ्रॉम, आई विल डू इट हियर, सो इट विल बी माइनस बाहर आके वो पॉजिटिव होगा, के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी हो गया ज़ीरो, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर, या फिर इसको हम लिख लें वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। नाउ सिंस वी आर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये W की जगह ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल। सो द फॉर्मूला फॉर V is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. So this is the proof for electric potential due to a point charge. Uska formula is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Now we have to note some important points. So if the source charge is positive, the potential will be positive. And if the source charge is negative, the potential will be negative, है ना। एक चीज़ आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ हमने और बोला था कि हमने एज्यूम किया था कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। वो अगर हम यहाँ पे R के जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि यस द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। अगर R की जगह मैं इस फॉर्मूले में इन्फिनिटी डाल देता हूँ तो क्या हो गया, ये V infinity is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R की जगह इन्फिनिटी, तो 1 upon इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाता है। सो V infinity is equal to ज़ीरो, hence proved. So this is what we studied. Now हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस both the potential and electric field intensity decreases because it is inversely proportional, है ना। जैसे जैसे हम डिस्टेंस एक चार्ज से ज़्यादा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉल है वो इतना स्टीप नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगा। सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम दोनों रखते हैं, पोटेंशियल भी रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रखते हैं। अब मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैंने E से और रेड मार्कर से डिनोट किया, और जो पोटेंशियल है वो V से। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो V का जो ग्राफ बनेगा, फॉल तो हो रहा है ना। सो दिस इज V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये फॉल ऐसा होगा।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉल कैसा होगा? इट विल बी स्टीपर, है ना, ये ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी। सो बिकॉज ई इज प्रोपोर्शनल टू अपन आर स्क्वायर। सो दिस इज और ये कहीं पे भी इन्फिनिटी में जाके दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ज़ीरो होंगे। सो दिस इज द मेन थ्योरी अबाउट इट। अब एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ये बुक का ही है। सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10⁻⁷ कूलम located 9 centimeter away from the charge. अब this is the, we have to calculate the potential and also we have to calculate the work done in bringing a charge which is 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to P. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is given in this question. The question given here is the value of charge Q is equal to 4 into 10⁻⁷ coulomb and also R is 9 centimeter, 9 centimeter या 9 into 10⁻⁻² मीटर दिया है। अब हमको निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने जैसे दिखा K Q अपॉन R। K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹ तो अब इसमें सिंपली इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। K Q अपॉन R इज 9 into 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 4 into 10⁻⁷ अपॉन 9 into 10⁻⁻² वोल्ट्स। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 9 कट गया, 4 7 ये हो गया 11 -7। तो 11 - 7 कितना हो गया? 4 वोल्ट्स। सो 4 into 10⁴ वोल्ट्स ये वहाँ का पोटेंशियल है। अब वहाँ पे हमको एक चार्ज दिया है, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए कितना वर्क देना है? चार्ज दिया गया है 2 into 10⁻⁹ कूलम। हमको निकालना है वर्क डन, इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए। नाउ वर्क डन पोटेंशियल इज इक्वल टू work done in bringing that charge from infinity to that point P upon Q। तो हमको ये मालूम है कि पोटेंशियल कितना है 4 into 10⁴। वर्क डन हमको निकालना है और चार्ज है 2 into 10⁻⁹ कूलम। तो वर्क डन विल बी 4 2s are 8 into 10⁻⁻⁵ जूल्स। ये होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे आपको तो ये मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।